generally. ठीक है, so topic for today is modification of leaves. So as you know that the main function of the leaf is photosynthesis, but in addition to photosynthesis, the leaf they are also performing some of the important function. ठीक है बेटा, लीफ जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी परफॉर्म करता है. तो वन ऑफ दैट फंक्शन इज कि समटाइम्स व्हाट यू सी द लीव्स दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स. ठीक है, कोई भी लीफ जो है वो बीच में से बाइफरकेट हो जाता है and it is later converted into the tendrils. So such type of leaf tendrils you will find in case of pea plant. ठीक है, मटर का जो पौधा होता है उसमें आपको इस तरह के tendrils नजर आते हैं. And sometimes what you see the leaves they may also converted into spines. ठीक है, leaf reduce होके क्या बन जाते हैं, spines बन जाते हैं as they are found in case of cactus. तो cactus में आपको spines नजर आते हैं. उसके बाद देखिए there are some fleshy leaves also found. Where you see these fleshy leaves, so these fleshy leaves they are actually found in onions and garlic. ठीक है, अगर आप अनियन जो है उसको छीलते हैं तो उसके जो लीव्स रिमूव होते हैं वो फ्लैशी लीव्स है. अगर आप गार्लिक जो है उसको पील ऑफ करेंगे then also the leaves they are known as the fleshy leaves. तो fleshy leaves का मेन फंक्शन है storage of food. Okay बेटा, next is there is a plant and the name of the plant is Australian acacia. Okay बेटे, so this Australian acacia plant, here the leaves they are very short lived. इसके leaves जो है वो short lived leaves होती हैं and here the leaf is not performing the function of photosynthesis. यहाँ पे इसके जो leaves होते हैं ना वो photosynthesis perform नहीं करते. Instead of leaves, ठीक है, leaf की जगह पे the petiole of the leaf. What is the petiole? आपको बताया था, there is a small segment that is present at the base of the leaf and by which it is attached with the branch. It is known as petiole. ठीक है, छोटी सी डंडी होती है लीफ की. तो this petiole here it become expanded and it develop green color because of the presence of chlorophyll and later it photosynthesize food. तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में लीफ जो हैं वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती हैं एंड petiole की फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके, फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा है कि लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोर्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट है सच एज देयर इज अ प्लांट नोन एज पिक्चर प्लांट एंड इट्स अनदर नेम इज नीपेंथस and there is one another colorful plant which is known as Venus flytrap. So all of these have modified kind of leaves. ठीक है, in case of pitcher plant or Nepenthes, pitcher shaped leaves are there. Pitcher का मतलब होता है मटका. तो जैसे एक मटके के ऊपर एक लिड रखी हुई होती है उसी तरह से these pitcher shaped leaves they also have a lid that is present over there. So when the insect it sits on these pitcher shaped leaves, because pitcher has one cavity inside, so this insect fall into the pitcher and later on the lid it close. So there are numerous hairs present inside the pitcher which do not allow the insect to escape. In this way they produce digestive juices and they obtain their nutrition from the insect. And similar is the case with Venus flytrap. तो देखो बेटे, next topic है after the leaf modifications, inflorescence. Okay, what do you mean by inflorescence? So here the word inflorescence means the arrangement of flowers on the floral axis. ठीक है, floral axis पे flower कैसे arrange है, that is known as inflorescence. तो कहते हैं कि what is a flower actually? A flower is a modified shoot. A flower जो है वो हमेशा एक modified shoot होती है. तो whenever a normal shoot has to be bear a flower, जब भी एक normal shoot ने flower bear करने होते हैं तो at the terminal position of that normal shoot some color gets developed. ठीक है, कुछ beautiful color develop हो जाता है because of the presence of a hormone and the name of the hormone is known as floragen. तो वहां से वो एक कलरफुल सी शूट बन जाती है and one bud appear at the terminal position which is known as the floral bud or the terminal bud, and when this bud opens then it bear a flower inside. ठीक है, तो ये फ्लावर ब्रांचेस पे कैसे अरेंज है, फ्लोरल एक्सिस पे कैसे अरेंज है, उसी को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस. और इनफ्लोरेसेंस टू टाइप्स की होती है. ओके बेटे, इससे पहले मैं थोड़ा सा और बताऊंगी आपको कि मोस्टली वो कहता है कि जब भी किसी शूट में फ्लावर बियर करते हैं
So initially what happened, there are certain changes that are seen in that particular shoot. उस शूट के अंदर आपको कुछ चेंजेस नजर आते हैं, ठीक है। एक तो शूट के जो इंटरनोड्स है ना उसकी ग्रोथ नहीं होती, एंड सेकंड थिंग इज कि वो शूट कैसी हो जाती है, कंडेंस्ड शूट हो जाती है, एंड फ्रॉम द इंटरनोडल पोर्शन, ठीक है। इंटरनोड्स की ग्रोथ जो है वो ज्यादा नहीं होनी, शूट में छोटे से रह जाना है, और उसके टर्मिनल पोजीशन पे बड आ जाती है, विच इज फ्लोरल बड, and when that bud open so it actually produce the flower, ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और इट कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक है। तो अगर जो है किसी भी शूट की जो एपिकल रीजन है वहां पे फ्लावर आ जाता है, या फिर एपिकल रीजन में फ्लावर नहीं आता एंड लेटरल ब्रांचेस में फ्लावर्स पहले आते हैं, on the basis of that we have divided the inflorescence into two types. The first is known as racemose inflorescence and second is known as cymose inflorescence, ठीक है बेटे। फर्स्ट हम बता रहे हैं आपको racemose inflorescence। तो देखो यहाँ पे आपको एक कॉमन सा फ्लावर नजर आ रहा है, तो racemose inflorescence में क्या होता है, in this type of inflorescence the main axis continues to grow, ठीक है। तो मेन शूट जो होती है वो ग्रो करती रहती है, देखो यहाँ पे मेन शूट जो है वो ग्रो करी जा रही है, और जो उसमें से लेटरल शूट्स निकली है ना उसके ऊपर फ्लावर्स पहले आते हैं, ठीक है बेटे। तो हमेशा याद रखिए कि इन केस ऑफ racemose inflorescence the lateral shoots they bear the flowers first and in the last the apical shoot it actually bear the flower, and all of these flowers they are borne on the lateral shoots in an acropetal succession। तो acropetal succession जो है उसको आप इस तरीके से समझेंगे कि हमेशा बेस जो है उसमें से फ्लावर लगने शुरू होंगे एंड ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है बेटे। तो बेस पे लगने वाला फ्लावर सबसे ओल्डर फ्लावर होगा और ऊपर की तरफ लगने वाले फ्लावर्स जो हैं दे आर द यंगर फ्लावर्स। So such type of succession or process of flowering it is known as acropetal succession। फिर से सुनेंगे, जब किसी लेटरल शूट्स में सबसे नीचे वाले लेटरल शूट पे पहले फ्लावर लगते हैं एंड ऊपर वाले लेटरल शूट्स में बाद में फ्लावर लगते हैं और सबसे ऊपर वाले लेटरल शूट पे यंग फ्लावर होता है, तो इस तरह की फ्लावरिंग पोजीशंस को हम एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं, ओके। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि racemose inflorescence is a kind of inflorescence where the main axis it continues to grow, it do not bear the flower, whereas the flowers they are borne on the lateral shoots in an acropetal succession, means the flower that is present at the upper lateral shoots it is actually a younger flower, and the flower that is present at the basal lateral shoots it is actually known as the older flower, okay bete। Second is known as cymose inflorescence। So what is a cymose inflorescence? So here in case of cymose inflorescence what you see कि मेन एक्सिस जो है उसके ऊपर पहले फ्लावर आता है और जो लेटरल शूट्स हैं उनके ऊपर बाद में फ्लावर्स आते हैं। तो देखो दिस इज द मेन एक्सिस और इसके ऊपर ये फ्लावर आ गया, इसकी ग्रोथ यहीं स्टॉप होगी। फिर इसमें से ये 2 लेटरल ब्रांचेस निकली हैं और उसके में से भी फर्दर 2 लेटरल ब्रांचेस निकली हैं। तो देखो इसमें से जो पहले लेटरल ब्रांच निकली थी उसके ऊपर फ्लावर आ गया, उसके बाद 2 लेटरल ब्रांचेस निकली तो दोनों में उसके बाद फ्लावर आएगा। तो दिस इज फ्लावर नंबर 1, दिस इज फ्लावर नंबर 2 इन बोथ केसेस एंड दीज आर फ्लावर नंबर 3। हमेशा याद रखिए कि मेन शूट पे पहले फ्लावर आएगा और लेटरल शूट्स में बाद में फ्लावर आएंगे, और जब मेन शूट पे फ्लावर आ जाएगा तो उसकी ग्रोथ रुक जानी है। तो फ्लावर किस तरीके से आएंगे, तो फ्लावर्स दे आर बोर्न इन बेसिपिटल पैटर्न, ठीक है बेटे। बेसिपिटल को कैसे समझेंगे कि बेस में से फ्लावर लगने जो है वो शुरू होंगे, ठीक है। और देखो बेस में से नहीं, ऊपर से फ्लावर लगने शुरू होंगे और बेस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर वाला फ्लावर जो है वो पुराना होगा और बेस पे लगने वाला फ्लावर जो है वो न्यू होगा। तो दोनों में से एक टर्म आप रिवाइज कर लेंगे। मैंने आपको एक्रोपिटल में बोला था कि जो बेस पे फ्लावर लगेगा वो सबसे ओल्ड होगा, ऊपर वाला फ्लावर सबसे नया होगा। इसका अपोजिट बेसिपिटल में है, ऊपर वाला फ्लावर जो है वो ओल्ड होगा और बेस पे लगने वाला फ्लावर जो है वो यंग होगा। तो सच टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज बेसिपिटल सक्सेशन। तो याद रखिए कि साइमोस इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर
and limited growth of the main axis may takes place. The flower will later bonds on the lateral branches in a basipetal manner. Okay, बेटे. अब वो कहते हैं कि what is a flower? A flower is actually the reproductive unit of angiosperms. किसी भी angiosperms या flowering plants के reproductive unit को आप flower कहते हैं. And it is meant for sexual reproduction. Flower का main function क्या है? Sexual reproduction करना. And what is a flower? Actually, a flower is a modified shoot where the shoot apical meristem changes into floral meristem. ठीक है, एक फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट होती है, मतलब एक नॉर्मल शूट जो है वो मॉडिफाई होकर फ्लोरल शूट बन जाती है और वो फ्लोरल शूट आगे जाके फ्लावर बियर करती है. एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ एवरी शूट. तो हियर द शूट एपिकल मेरिस्टेम इट चेंजेस इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम. ओके बेटा, देयर आर फ्यू डेफिनेशंस दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू रिलेटेड टू फ्लावर. अच्छे से याद रखेंगे. What is a bisexual flower? A flower having both androecium and gynoecium. एक फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, मतलब स्टेमन भी प्रेजेंट है, पिस्टल भी प्रेजेंट है. तो सच अ फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है बेटे, स्टेमन के लिए हम एक नई टर्म जानेंगे यहाँ पे एंड्रोशियम, एंड पिस्टल के लिए नई टर्म है गाइनोशियम. अगर दोनों प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है. What is a unisexual flower? A flower having only stamens. ठीक है, एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट है या फिर कार्पल्स प्रेजेंट है. Such type of flower are known as unisexual flower. Okay. Next is actinomorphic flower. What is an actinomorphic flower? So when a flower can be divided into two equal radial halves. अगर आप ये फ्लावर को अपने हैंड में लेते हैं and you are able to divide into two equal radial planes, then such a flower is known as actinomorphic flower. Okay, so there are two flowers. One is mustard flower and another is dhatura flower. ठीक है, dhatura is a kind of a drug. एक ड्रग वाला प्लांट होता है. मस्टर्ड आपको पता है कि सरसों. तो दोनों में जो फ्लावर है दे आर द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. तो अगर आप उसको सेंटर में से डिवाइड करते हैं तो आपको टू इक्वल रेडियल हाफ मिल जाते हैं. And then it is zygomorphic flower. What is a zygomorphic flower? So when a flower is divided into two equal halves only in one particular vertical plane. ठीक है, अगर आप किसी फ्लावर को एक वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करते हैं एंड आपको उस पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में उसके इक्वल हाफ मिल जाते हैं, then the flower is known as zygomorphic flower. So here you can give the example of two flowers. One is beans, another is पी का जो फ्लावर है वो भी जाइगोमॉर्फिक है, बीन्स का फ्लावर भी जाइगोमॉर्फिक है. एंड केशिया फिस्टुला इट इज अ काइंड ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट. येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं इसमें. उसका फ्लावर जो है वो भी कैसा है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. ठीक है बेटे, इसके अलावा फ्लावर शुड बी एसिमेट्रिक फ्लावर. तो एसिमेट्रिक फ्लावर क्या होता है? अ फ्लावर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी ऑफ द वर्टिकल प्लेन. चाहे किसी भी वर्टिकल प्लेन में आप फ्लावर को कट कर ले, अगर आपको कभी भी उसके इक्वल हाफ नहीं मिलते, ठीक है, अगर सेंटर में से पास करके आप किसी भी वर्टिकल प्लेन में फ्लावर को कट करें, आपको इक्वल हाफ नहीं मिलते हैं, तो सच टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज एसिमेट्रिक फ्लावर. और इसका एग्जांपल है काना फ्लावर्स. ओके बेटे, देयर इज सम अदर डेफिनेशंस रिलेटेड विद फ्लावर. तो फ्लावर में बी कॉल्ड एज ट्राइमेरस. अगर एक फ्लावर के अंदर 3 फ्लोरल अपेंडेजेस है, ठीक है, अगर एक फ्लावर की 3 कलरफुल पत्तियां हैं, लीव्स हैं, तो सच टाइप ऑफ फ्लावर आर नोन एज ट्राइमेरस फ्लावर. मतलब उसमें सेपल भी 3 होंगे और पेटल भी 3 होंगे. अगर किसी फ्लावर के अंदर 4 फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, मतलब सेपल भी 4 है और पेटल भी 4 है. ठीक है बेटे, सेपल हमेशा कलरफुल लीव्स को हम कहते हैं, एंड नहीं, सेपल हमेशा हम ग्रीन लीव्स को कहते हैं एंड पेटल्स हमेशा कलरफुल लीव्स को कहते हैं. तो अगर किसी फ्लावर के अंदर ग्रीन लीव्स भी 4 है एंड कलरफुल लीव्स भी 4 है, then the flower is known as tetramerous. Then we have pentamerous flower. So if a flower has 5 floral appendages, sepals as well as petals. अगर किसी भी फ्लावर के अंदर 5 पत्तियां हैं, चाहे वो ग्रीन वाली हैं,
चाहे वो कलरफुल है, तो the flower is known as pentamers. Okay बेटे, beside this we have two another terms, bracteate and ebracteate. What is bracteate? ऐसे flowers जिनमें reduced leaf present होते हैं flower के pedicel पे, they are known as bracteate. तो देखो कोई भी flower को when you hold a flower in your hand, तो there is a small segment जिसकी हेल्प से आप फ्लावर को पकड़ते हैं. हर एक फ्लावर की एक छोटी सी डंडी होती है, उसको हम पेडिसिल कहते हैं. और पेडिसिल के बेस पे ना सेपल्स के अलावा कई बार आपको और रिड्यूस्ड लीफी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, which are known as bract. If these small leafy structures they are present on the pedicel, this means the flower is a bracteate flower. Okay? और अगर फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है, then the flower is known as ebracteate flower. ओके बेटे, फिर है the flower may be of three types. तो these may be hypogynous flower, these may be perigynous flower और these may be epigynous flower. ठीक है, तीन तरह के फ्लावर हैं. तो बारी बारी में आपको बताऊंगी कि what are these three type of flowers. तो देखो, फर्स्ट इज hypogynous flower, then we have perigynous flower, then we have epigynous flower. तो first is hypogynous flower. What is a hypogynous flower? A hypogynous flower is that flower in which the gynoecium, means the pistil, it occupies the highest position and the other parts of the flower they are situated below it. ठीक है, अगर हमारे पास एक ऐसा फ्लावर है जिसका कि पिस्टल जो है, इसमें तीन चीजें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वो बाकी सारे जो फ्लोरल पार्ट हैं उनसे थोड़े से ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होती हैं. तो इस तरह के फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं. सच टाइप ऑफ फ्लावर्स, इस तरह के फ्लावर्स के अंदर ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है. तो तीन तरह के फ्लावर्स इसमें आ जाते हैं. फर्स्ट इज द मस्टर्ड फ्लावर, सेकंड इज द चाइना रोज फ्लावर. ठीक है बेटे, तो फर्स्ट आपको हिबिस्कस नजर आ रहा है जिसका नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और चाइना रोज. सेकंड आपको सरसों के फ्लावर नजर आ रहे हैं, मस्टर्ड फ्लावर्स. एंड थर्ड में आपको ब्रिंजल का फ्लावर नजर आ रहा है, बैंगन का फूल नजर आ रहा है. तो याद रखिए कि हाइपोगाइनस फ्लावर में पिस्टल हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, ओवरी सुपीरियर होती है एंड बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं, ठीक है, कलरफुल लीव्स जिनको हमने सेपल्स बोला, कलरफुल लीव्स जिनको हमने पेटल्स बोला और ग्रीन लीव्स जिनको हमने सेपल बोला, वो पिस्टल से नीचे होती हैं एंड पिस्टल टॉप पे होता है, उसको हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं. तो इसके थ्री एग्जांपल हैं, मस्टर्ड फ्लावर, देन चाइना रोज फ्लावर एंड देन ब्रिंजल. ओके बेटे, नेक्स्ट इज पेरिगाइनस फ्लावर. पेरिगाइनस फ्लावर जो होता है उसपे गाइनोशियम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, मतलब जो पिस्टल है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं दे आल्सो हैव द सेम पोजीशन एज द पिस्टल. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पिस्टल बाहर को निकला हुआ है एंड बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे रह गए हैं. पिस्टल भी उतना ही बड़ा होता है जितने अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं. तो सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज द पेरिगाइनस फ्लावर. तो ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर का ओवरी इज हाफ इंफीरियर. ठीक है, ओवरी बहुत नीचे नहीं होती, बीच में होती है, आधी ऊपर होती है, आधी नीचे होती है, तो हाफ इंफीरियर ओवरी इज प्रेजेंट. तो इसमें थ्री फ्लावर्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज फ्लावर ऑफ प्लम. ठीक है बेटे, प्लम के फ्लावर्स आ जाते हैं. देन वी हैव रोज फ्लावर, रोज फ्लावर्स आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास पीच के फ्लावर्स आ जाते हैं. ठीक है, तो प्लम, रोज एंड पीच फ्लावर, we are the example of perigynous flower. After that we have epigynous flower. तो epigynous flower एक्चुअली वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें किसी भी फ्लावर का जो थैलेमस है, देखो थैलेमस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फ्लावर के नीचे देयर इज अ स्मॉल सेगमेंट एंड दैट सेगमेंट इज नोन एज पेडिसिल. तो वो सेगमेंट जहां पे फ्लावर को बियर करती है ना, वहां से थोड़ी सी स्वॉलन होती है, तो दैट पोजीशन इज नोन एज थैलेमस. तो कहते हैं कि अगर किसी भी फ्लावर जो है उसका जो थैलेमस है, अगर आप उस फ्लावर को ओपन करें तो उसका जो थैलेमस है अगर आप उसको खोल के देखते हैं उसमें से अगर ओवरी निकलती है, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज एपिगाइनस फ्लावर. तो कई बार आप अपने हैंड्स में मैरीगोल्ड फ्लावर्स ले लेते हैं या फिर सनफ्लावर ले लेते हैं, उसको आप ब्रेक करने लग जाते हैं और उसका जो नीचे वाला ग्रीन सा पोर्शन होता है ना, वहां से उसकी ओवरी निकलती है. तो such type of flowers are known as epigynous flower.
तो इस केस में द ओवरी इज एन इंफीरियर ओवरी। तो सच टाइप ऑफ फ्लावर्स दे आर फाउंड इन गुआवा। गुआवा होता है अमरूद, ठीक है बेटे। इसके अलावा कोकुम्बर में ऐसे फ्लावर होते हैं विच इज नोन एज खीरा, एंड सनफ्लावर के अंदर भी इस तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। सनफ्लावर जो है उसका जो डिस्क होता है ना, उसमें दो तरह के फ्लावर्स छोटे छोटे होते हैं, एक को रीफ्लोरेट्स कहते हैं, एक को डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं। तो कहते हैं कि सनफ्लावर के जो रीफ्लोरेट्स हैं वो इस तरह की एपिगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल है। ओके, तो आप याद रखेंगे कि इसके अंदर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ऊपर होते हैं, पिस्टल काफी अंदर होता है, और ओवरी जो है वो फ्लावर के थैलेमस में होती है, इसलिए ओवरी इंफीरियर होती है। एग्जांपल्स में गुआवा, कोकुम्बर और ये फ्लोरेट्स आ जाए। Okay, बेटा, so this diagram is very much familiar to you. You have drawn this diagram so many times in your notebook. So here I am going to show you the different parts of a flower. देखो हर एक फ्लावर जो है उसके अंदर आपको ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। तो these green leafy structures they are known as sepals. ठीक है, तो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और उसके बाद हमें कलरफुल लीव्स नजर आते हैं which are bigger in size. So these colorful leaves they are known as petals. इनको हम petals कहते हैं। ओके बेटे, उससे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको किसी भी फ्लावर जो है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नजर आता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हियर इज नोन एज पिस्टल, एंड पिस्टल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब पिस्टल के साथ साथ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज आल्सो देयर व्हिच इज कलेक्टिवली नोन एज स्टेमन, और उसके 2 पार्ट्स हैं, एंथर इज अ बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर, और जो नीचे वाला फ्लोरल पार्ट है, फिलामेंट लाइक पार्ट है, इट इज नोन एज फिलामेंट। हमेशा याद रखो कि जो एंथर है उसके अंदर क्या बनती है? मेल गैमेट्स बनती हैं, एंड द मेल गैमेट्स आर नोन एज पोलन ग्रेन्स। ओके बेटा, फिर हम आगे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज कैलेक्स। व्हाट इज कैलेक्स? कैलेक्स इज द आउटरमोस्ट बॉल ऑफ द फ्लावर। तो कहते हैं कि जितने भी फ्लोरल पार्ट है ना वो किस तरीके से अरेंज है, सारे के सारे फ्लोरल पार्ट जो हैं वो एक सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड है इन अ फ्लावर। तो अगर आप सारे फ्लोरल पार्ट्स को, इफ यू अज्यूम द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इन अ सर्कुलर फैशन, तो देयर आर हाउ मेनी रीजन्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट सर्कल? तो 4 रीजन्स आर प्रेजेंट। एक सबसे आउटरमोस्ट लेयर है फ्लोरल पार्ट्स की, उसके बाद उसके नेक्स्ट लेयर है, उसके अंदर है, उससे नेक्स्ट उसके अंदर है, और सबसे नेक्स्ट सबसे अंदर है। तो सबसे आउटमोस्ट जो बॉल है फ्लावर की, ठीक है, उसको हम सेपल्स, उसको हम कैलेक्स कहते हैं। एंड यू कैन से कैलेक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स। कैलेक्स किसका ग्रुप है? सेपल्स का ग्रुप है। एंड व्हाट आर दीस सेपल्स एक्चुअली? तो दीज सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो सेपल्स होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं और लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद कहते हैं कि कोई भी फ्लावर जो है जब अपने बड स्टेज में होता है, when the flower is in its bud stage, so in that situation these calyx they protect the flower. ये फ्लावर जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो रोज का जो फ्लावर है अभी ओपन नहीं हुआ है, पर रोज के कलरफुल लीव्स इन ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। So these are actually the calyx, which is actually the group of sepals. So here I am introducing 2 terms, gamosepalous and polysepalous. What is gamosepalous? Gamosepalous means when the sepals they fused. ठीक है, जब सारे सेपल्स यानी ग्रीन लीव्स आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज हो रखे हैं, the condition is known as gamosepalous. And what is polysepalous? तो polysepalous का मतलब होता है कि when the sepals they are free, जब सेपल एक दूसरे के साथ चिपके नहीं है, अलग अलग हैं, फ्री हैं, the condition is known as polysepalous. तो याद रखेंगे gamosepalous का मतलब है all the sepals they are fused, and if the sepals they are free, the condition is known as polysepalous. Okay, but the next part of the flower is known as corolla. So what is corolla? Corolla is a group of petals. जिस तरह से कैलेक्स जो है it is a group of sepal, in the similar way corolla is a group of petals, and petals they are generally brightly colored leaves. ठीक है, petals जो हैं वो bright colors रखते होते हैं, and because of their bright color they attract insects.
अपने ब्राइट कलर की वजह से वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं, एंड दीज इंसेक्ट्स दे attach the pollen grains with their body, and in this way they help in the process of pollination. Okay, so again the corolla may be of two types. It may be polypetalous or it may be gamopetalous. तो देखो बेटे polypetalous का मतलब होता है if all the petals are free. तो देखो डायग्राम नंबर 1 में सारे पेटल्स आपको फ्री नजर आ रही हैं, तो such type of flower is known as polypetalous. और gamopetalous जो है उसमें सारे के सारे पेटल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो सेकंड वाला जो फ्लावर है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए गैमोसेफेलस फ्लावर। थर्ड में आपको जो लोटस फ्लावर नजर आ रहा है विच इज एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलीपेटलस फ्लावर। ठीक है, ये एक पॉलीपेटलस फ्लावर जो है उसका एग्जांपल। नेक्स्ट इज नोन एज एंड्रोशियम। So what is androecium? Androecium it always constitutes the third innermost whorl of a flower. और androecium is a group of stamen. Androecium जो है वो किसका ग्रुप है? stamens का ग्रुप है। And what is a stamen? तो कहते हैं कि stamen is the male reproductive part of a flower. किसी भी flower का जो male reproductive part है उसको हम stamen कहते हैं। And how many components it has? So it has two components. The stalk-like cylindrical part, which is known as filament, and the topmost part, which is bilobed, it is known as anther. ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं और एक टॉप मोस्ट पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं? उसको टॉप मोस्ट बायोलॉजिकल पार्ट को हम कहते हैं एंथर, और एंथर के 2 लोब्स होते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो है एंड्रोशियम दिखाई गई हैं। Androecium is actually the group of stamens. So this is the filament जो ग्रीन कलर का है, और ये जो ऊपर उसके जो है कैप है वो एक्चुअली एंथर है, और इसके कितने इसके पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। थर्ड नंबर डायग्राम में देखो एंथर के 2 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। देन फिलामेंट इज देयर। अगर आप एंथर को सेंटर में से कट करेंगे तो व्हाट यू सी इनसाइड दिस 2 लोब्स, ठीक है, we get 4 compartments in a 2 lobes के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं। तो इसलिए एंथर हमेशा जो है यंगर स्टेज में बाइलॉब होता है, और जो लेटर स्टेज है उसके अंदर एंथर कैसा होता है? टेट्रालॉब। ओके बेटे, नाउ गाइनोशियम। व्हाट इज गाइनोशियम? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ मेनी कार्पल्स एंड पिस्टल्स। तो बहुत सारे कार्पल्स एंड पिस्टल्स के ग्रुप को हम गाइनोशियम कहते हैं। तो देखो गाइनोशियम कार्पल्स का ग्रुप है, तो कार्पल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, कार्पल के 3 पार्ट है, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी इज द इलोंगेटेड पार्ट, इन लार्ज पार्ट, और इसमें 3 बेसल पार्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, स्टाइल क्या है? तो स्टाइल इज द इलोंगेटेड ट्यूब। स्टाइल जो है इट इज द इलोंगेटेड ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स द you can say which connects the ovary with the topmost part which is known as stigma. And what is ovary? Ovary is the basal part which is a large one. Style is the elongated tube which lies over the ovary. Ovary के ऊपर से जो elongated tube जाती है उसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टिग्मा क्या है? तो स्टिग्मा एक्चुअली इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टाइल के टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है स्टिग्मा, और यहाँ पे स्टिग्मा जो है उसका मेन फंक्शन है कि इट रिसीव पोलन ग्रेन्स that are actually coming on stigma with the help of a process which is known as pollination. फिर देखो each ovary contains 1 or more ovules. हर एक ओवरी जो है उसमें 1 or more ovules होते हैं which are attached to the flat cushion like structure known as placenta. ठीक है, तो एक कार्पल जो है अगर एक ही प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, तो वो कार्पल जो है वो फ्री है, तो उस कंडीशन को हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है और सारे के सारे कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, तो इस कंडीशन को सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यू नो दैट कि ओव्यूल्स जो हैं वो ग्रीन सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फ्लावर्स जो हैं उसके काफी सारे पार्ट डीजनरेट हो जाते हैं। पर अगर हम बात करेंगे किसकी, फ्लावर जो है उसके कुछ पार्ट्स की, तो वो उसमें रिमेनिंग रहते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल जो है किसी भी फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है,
and the ovary it changes into the fruit. ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सी द डायग्राम, डायग्राम में आपको स्टिग्मा नजर आ रहा है, आपको स्टाइल नजर आ रहा है, आपको ओवरी नजर आ रहा है। एंड व्हेन यू सी इनसाइड द ओवरी व्हाट यू फाइंड प्लासेंटा। ओवरी के अंदर आपको क्या नजर आएगा? प्लासेंटा नजर आएगा। प्लासेंटा जो है उसके साथ आपको अटैच होते हुए कौन नजर आएंगे? ओव्यूल्स नजर आएंगे। ठीक है बेटे, तो दिस इज द कॉमन डायग्राम ऑफ द प्लांट। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि व्हेन यू कट द ओवरी इन अ वर्टिकल फैशन, ठीक है, जब हम किसी भी ओवरी का वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं तो हमें उसके अंदर न्यूमरस ओव्यूल्स प्रेजेंट नजर आते हैं। एंड ऑल ऑफ दीस ओव्यूल्स दे आर अटैच्ड विद द स्ट्रक्चर नोन एज प्लासेंटा। सारे के सारे ओव्यूल्स जो है वो स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं जिसे प्लासेंटा कहते हैं। एंड अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ओवर द प्लासेंटा इट इज नोन एज प्लासेंटेशन। ओके बेटे, तो दैट्स ऑल अबाउट द 4 फ्लोरल पार्ट्स। तो हमेशा याद रखिए कि एक फ्लावर के अंदर 4 तरीके से फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट होता है। आउटरमोस्ट वॉल हमेशा कैलेक्स बोलते हैं उसको, उससे नेक्स्ट वाली को करोला, थर्ड नंबर वाली जो है उसको आप कहते हो एंडोशियम, फोर्थ नंबर वाली को आप ब्राइनोशियम बोलते हो। ठीक है बेटे, ओव्यूल हमेशा सीड बनेगा, ओवरी हमेशा क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। एंड व्हाट इज प्लासेंटेशन? So placentation is actually the arrangement of ovules on the, ठीक है, प्लासेंटा। प्लासेंटा के ऊपर ओव्यूल कैसे अरेंज है? That is known as placentation. So this much you have to be studied today. So tomorrow we will start with the new topic, placentation. Is there any doubt in this topic, children? Any questions from your side? यस बेटे, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो इसको रीड करेंगे आप अप टू पेज नंबर, मैं पेज नंबर 74 पर हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कई सारी टर्म्स बताई हैं, गैमोसेफेलस और गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस एंड पॉलीसेफेलस। तो याद रखो, गैमो वर्ड का हमेशा मीनिंग फ्यूज होता है, और अगर पेटल फ्यूज है तो हम वर्ड यूज करेंगे गैमोपेटलस। और अगर पेटल या सेपल दोनों ही फ्री हैं, तो सेपल्स अगर फ्री हैं तो वर्ड यूज करोगे आप पॉलीसेफेलस, और अगर सेपल्स की जगह पेटल्स फ्री हैं तो वर्ड यूज करोगे पॉलीपेटलस। और अगर दोनों ही फ्यूज्ड हैं तो सेपल्स अगर फ्यूज्ड हैं तो वर्ड यूज करोगे गैमोसेफेलस, और अगर पेटल्स जो हैं नहीं, सेपल्स अगर फ्री हैं तो वर्ड यूज करोगे आप पॉलीसेफेलस। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर यू। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? व्हाट इज एस्टिमेशन? बेटे ये टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि एस्टिमेशन इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, हाउ द फ्लोरल पार्ट्स, मतलब हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 2 टाइप ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, कि किसी भी फ्लोरल ब्रांच के ऊपर सेपल और पेटल वो किस तरीके से अरेंज है, किस पैटर्न में अरेंज्ड है, उसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। तो 4 टाइप्स की एस्टिमेशन होती है। बुक में देखो पेज नंबर 74 पे, वाल्वेट एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एस्टिमेशन, इम्ब्राइकेट एस्टिमेशन एंड देन वैक्सिलरी एस्टिमेशन। तो बहुत ही इजी है, उसके ऊपर देखो कुछ ब्लैक डायग्राम्स बनाए हुए हैं। तो अगर वो कहता है कि अगर फ्लोरल पार्ट्स के सब एजेस जो हैं वो एक दूसरे को टच करती हैं, तो फिर एस्टिमेशन कौन सी है? वाल्वेट एस्टिमेशन। अगर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं उनकी एक एंड जो है उसको दूसरे फ्लोरल पार्ट का एंड ओवरलैप करता है, तो एस्टिमेशन इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिमेशन। और थर्ड टाइप की जो एस्टिमेशन है इट इज नोन एज इम्ब्राइकेट एस्टिमेशन। तो जो इम्ब्राइकेट एस्टिमेशन होती है उसके अंदर अगर हमारे पास 5 फ्लोरल पार्ट्स हैं, तो उसमें से वो कहता है कि कुछ फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो उनकी एजेस जो है वो अंदर एंड बाहर होती हैं, एंड कुछ फ्लोरल पार्ट्स टूली बाहर होती हैं दोनों एजेस को लेकर, और कुछ फ्लोरल पार्ट्स जो हैं टूली अंदर होते हैं दोनों एजेस को लेकर। So this type of estimation is known as the imbricate estimation, and last one is known as the vexillary estimation. ठीक है बेटे, वैक्सिलरी एस्टिमेशन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स में होती है जिनको हम पी प्लांट कहते हैं। तो देखो पी प्लांट्स जो है उनमें अगर आप उसके फ्लावर को ओपन करेंगे ना, तो यू विल सी दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन।
तो उसमें एक पेटल जो है वो साइज में काफी बड़ा होता है, और उसके साइड में 2 लेटरल पेटल्स होते हैं, एंड 2 लेटरल पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, एंड इसके अलावा वी हैव 2 एंटीरियर पेटल्स, और जो 2 एंटीरियर पेटल्स होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो जो बड़ा पेटल है इट इज नोन एज स्टैंडर्ड, एंड जो 2 लेटरल पेटल्स हैं व्हिच आर फ्री, तो these 2 lateral petals they are known as, देखो उसको क्या बोला गया है, उसको यहाँ पर जो है लेटरल पेटल्स को विंग्स बोला गया है, एंड जो 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं उसको कील बोला गया है। हमेशा याद रखो कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन पी प्लांट एंड द लेगुमिनस प्लांट्स, जिसमें पीज आ जाते हैं, बीन्स आ जाते हैं, राजमास आ जाते हैं, ऑल सीरियल प्लांट्स आ जाते हैं, उसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो ये लेग्यूम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। One is a bigger petal known as standard, 2 are lateral petals which are free and known as wings, and 2 anterior petals